Good morning, everyone. Hope you have read the previous topic that we have discussed yesterday. Okay, so let's continue with the topic that we have started. Yes, Bhavesh, you can still keep your video on if there is no light, beta. Okay? There will be less light on your face. कोई बात नहीं. You can keep your video on. Okay, so let's continue. So till now we have discussed about the topic Delhi Sultans, that how Delhi became commercial center in the rule of Tomar and Chauhans. We have established some new cities. Okay, so yes, so we have discussed they have these cities, they were established by the ruler series Jahanpana, okay, Delhi Kunha. So these were the cities. Then Delhi became important commercial center. Okay, then there were different rulers of Delhi, okay, who established their rule and control Delhi from time to time. Then we started discussing about finding of Delhi Sultans, that from where we come to know about these Delhi Sultans. So these Delhi Sultan we come to know about from Tariq and Tariq, which are the various histories written in Persian language. And these histories, Tariq and Tariq, so these histories has been written by various learned men. Who were these learned men? Yes, these learned men were administrator, courtiers. ठीक है, so जो भी राजा के दरबारी या और भी different ministers who has been appointed by the king, ruler at that time. ठीक है, poets भी हो सकते थे, secretaries भी हो सकते थे. So these persons, they have recounted events, और जो भी events थे they have noted down, and as well as they were also advising rulers, और साथ में साथ वो rulers को क्या करते थे, advice भी करते थे. They were also advising rulers. अब advise कैसे करते थे? They were advising rulers for just rule. वो rulers को just rule के लिए advice करते थे. Just rule means, just rule के लिए एक example आपकी book में दिया हुआ है, circle of justice, कि एक राजा को just rule करना चाहिए. Just rule मीन एक सर्कल, जो जस्टिस का सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहता है. ठीक है, तो वो जो सर्कल है वो कैसे चलता है कि फॉर किंग, दैट किंग ही इज डिपेंडिंग ऑन सोल्जर्स टू मेंटेनिंग हिज आर्मी, फॉर फाइटिंग विद अदर रूलर्स he is depending on soldiers, and soldiers they are working for salaries. ठीक है, and from where the king will pay salaries to soldiers? King will collect salaries from the revenue. ठीक है, revenue he will collect from peasants. Peasants will give revenue and then he will be able to give salaries. So when peasants will be able to give revenue, peasants जो है वो revenue कब दे पाएंगे? When the peasants they are prosperous and happy. जब peasants prosperous और happy हैं, only then they will be able to give revenue. और peasants prosperous और happy कब होंगे? When king is giving justice and his governance is good. जब king की governance अच्छी है, he is giving justice to the people, only then their peasants will be happy. So this is a circle which keeps on going. तो ये सर्कल है जो कि चलता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ जस्टिस बाय द ऑथर. और ऑथर कौन है? फकीर मुदब्बिर. ठीक है, तो फकीर मुदब्बिर ही ऑथर, दिस ऑथर ही हैज गिवन दिस हिस्ट्री ऑफ सर्कल ऑफ जस्टिस. ही हैज मेंशन्ड द सर्कल ऑफ जस्टिस इन हिज तारीख. ठीक है, सो ये द ऑथर्स ऑफ तारीख and Tariq. So they were advising rulers. So they were
doing administrative works. They were also poet, they were also courtier, they were also some secretaries, ठीक है, administrator, और they were also advising ruler, कि राजा के दरबार में होते थे तो राजा को कई बार वो एडवाइस भी करते थे. अब एडवाइस वो जो थे, yes, to all the students, board is clear? Yes बच्चे? Yes, now board is clear to everyone, beta? Okay. Yes. So these authors of Tariq and Tariq, they were advising rulers for just rule. एक तो वो just rule के advice कर रहे थे. Second, कि these जो authors थे, अब इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये authors जो थे, whether we are getting this information, whether it is correct or not, or what type of information they are writing. कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, प्रहस्तीस, the Brahmins used to write prahastis in praise of king. Brahman prahastis लिखते थे praise of king. Same way, these authors, they were also writing Tariq and Tariq, वो भी king के लिए, rulers के लिए लिख रहे थे. तो they were living in cities. These authors, they were living in cities. They were not living in villages with the peasants. वो peasant के साथ नहीं रह रहे थे. They were living in cities. और whatever information they were writing in these Tariq or Tariq, they were writing in hope of rich reward. ठीक है? So they were writing that king, ruler will be happy and he will give reward in return to these authors. So all these, whatever the information they were writing in Tariq and Tariq, they were writing just to praise the ruler. So in the hope of rich reward. So these authors, they were also writing in the hope of rich reward, and the side by side they were also advising rulers for ideal social order. They were also advising ruler for ideal social order. So what is this ideal social order? ठीक है, तो about these authors we come to know that they were authors of these Tariq. They were lived in cities, mainly Delhi, and they were not living in villages. They often wrote their histories for Sultan in the hope of rich rewards always. These authors, they were advising rulers on the need to preserve ideal social order. और वो हमेशा कोशिश करते थे कि ऑथर राजा को, जो रूलर्स को एडवाइस करें फॉर आइडियल सोशल. अब आइडियल सोशल ऑर्डर which was based on birthright and gender distinction. Birthright or gender distinction. A birthright, if one person has born in rich family, then he will be a rich person. ठीक है, अगर कोई नॉबल्स की फैमिली में he has got birth, तो जो भी उसके पास, उसके फादर्स के पास राइट थे, वो सारे राइट उस बच्चे के पास भी आगे जो उस फैमिली में बॉर्न हुआ है. ठीक है, नॉबल्स मतलब जो रिच पर्सन्स हैं. ठीक है, तो प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ, कि आपका बर्थ जिस फैमिली में हुआ है, तो जो फैमिली के पास पहले राइट्स थे वो सारे राइट्स अपने आप उस बच्चे को मिल गए. ठीक है, कि जैसे अगर उसके फादर एडमिनिस्ट्रेटर थे, राजा के दरबारी थे, उसका बेटा भी किसी ना किसी तरीके से राजा का दरबारी बन जाएगा. तो इस तरह के बर्थ राइट पे बिलीव करते थे. और साथ ही साथ जेंडर डिस्टिंक्शन कि सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन. यूजुअली these differences are used to argue कि men are superior to women. तो ये जो जेंडर डिस्टिंक्शन था, जेंडर डिस्टिंक्शन कि बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही, लेकिन वो कहते थे कि these differences they were used कि men superior है, God has made men superior, so man has the right to rule only. ठीक है, तो इस तरह उन्होंने जो आइडियाज, एक आइडियल सोशल ऑर्डर की आइडिया बनाया हुआ था, एंड दे वर एडवाइजिंग रूलर आल्सो ऑन द सेम वे. ठीक है, रूलर को भी इसी तरह एडवाइस कर रहे थे. एंड सेकेंड, देन इसमें हमें एक एग्जांपल मिलता है रजिया सुल्तान का. ठीक है, 1236 की बात है. ठीक है, इसको ईयर याद रखना भी इजी है.
1 2 3 और फिर तीनों को ऐड करके 6 बन गया है ना। तो 1236 में रजिया सुल्तान बनी। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। जैसे हमने कहा कि सबसे पहले टर्किश रूलर में कुतुबुद्दीन ऐबिक था, फिर इल्तुतमिश बना, और इल्तुतमिश की जो डॉटर थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया जो थी इल्तुतमिश के और बेटे भी थे, ये नहीं थे कि उसके बेटे नहीं थे, he was also having sons, but his sons were not as capable as Razia. Razia was more capable, more qualified, and she was having all the qualities to being sultan. रजिया के पास सारी क्वालिटीज थी कि वो एक सुल्तान बन पाए। लेकिन ये हमें मिनहाज सिराज के क्रॉनिकल से we get this information, and Minhaj Siraj write in his chronicle that he was not comfortable, that Minhaj Siraj was not comfortable when Razia became sultan. जब रजिया सुल्तान बन गई, क्योंकि अर्लियर तो कोई सुल्तान वुमेन बनी ही नहीं थी, ठीक है, तो रजिया वाज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो देन मिनहाज सिराज राइट कि आई एम नॉट कंफर्टेबल कि एक वुमेन जो है वो हमारे ऊपर रूल करेगी, ठीक है, कि मैन को सुपीरियर बनाया है, भगवान ने सुपीरियर बनाया है। तो लेकिन वो मिनहाज सिराज एडमिट्स, वो उसमें लिखता भी है कि अल्दोश she is more capable, more able and qualified than her brothers, ठीक है। वो मिनहाज सिराज अपने क्रॉनिकल में लिखता है कि वो बहुत कैपेबल है, बहुत क्वालिफाइड है, पता नहीं वो सारी क्वालिटीज भगवान ने उसमें कैसे डाल दी, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एज क्वीन इज रूलिंग अस, कि क्वीन हमारे ऊपर रूल कर रही है। और साथ ही साथ he has also mentioned कि अदर नॉबल्स वर नॉट हैप्पी, जो बाकी के नॉबल्स थे, ठीक है, बाकी के नॉबल्स जो और रिच पीपल्स थे, जो और एडमिनिस्ट्रेटर थे और गवर्नर्स थे, राजा के मिनिस्टर्स थे, तो वो भी हैप्पी नहीं थे इस रजिया सुल्तान के रूल से, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के रूल से वो हैप्पी नहीं थे। देन दिस इंफॉर्मेशन, so they were not happy with this ruler. So later on, what nobles did? They all nobles, they created a conspiracy against Razia. Razia के against सबने conspiracy रच के उसको 1240 में she was make out of throne, ठीक है, उसको राजा से, सुल्तान की पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था। She was removed from the throne in 1240. She was killed by the conspiracy that has been prepared by the nobles. The nobles ने एक पूरी षड्यंत्र रच के रजिया सुल्तान को मरवा दिया था, and her rule was ended. From 4 years she has ruled, from 1236 to 1240. Clear? So till this all points are clear to everyone? Yes, Rishita, bacha, you can use chat box if there is any doubt. So till now we have discussed about the authors of Tarikhs, that who were these authors? They were various learned men, and where they were living? They were living in cities, and they were writing these Tarikh and Twarikh in the hope of rich rewards. Okay? These authors, they were also advising rulers for just rule and for ideal social order that was based on birthright and gender distinctions. And then we have got written information about Razia Sultan, okay, about this gender distinction, that the society was based on gender distinction. So that's why the nobles, they were not happy with the rule of Razia Sultan. Okay, so now moving to the next, then we will start ki how Delhi Sultanate got expanded. Okay, how Delhi Sultanate it got expanded, expansion of Delhi Sultanate. So expansion means कि किसी चीज का expand होना, कि earlier it was small and then later on it extended, ठीक है, expansion of Delhi Sultanate,
ठीक है। सो एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत की कहां से हुई? एक्सपेंशन, अर्लियर दिल्ली वाज जस्ट अ गैरिसन टाउन, ठीक है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। एम्पायर का मीनिंग तो सबको क्लियर ही है कि किंगडम इज अ स्मॉल एरिया ऑन विच किंग रूल, एंड एम्पायर इज अ लार्ज एरिया ऑन विच किंग रूल, ठीक है, जैसे हमने चोला एम्पायर की बात की थी, ठीक है। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, अब ये गैरिसन टाउन क्या है? गैरिसन टाउन, गैरिसन इज अ fortified settlement with soldiers, ठीक है। गैरिसन टाउन क्या है? एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट है जिसमें कि सोल्जर्स, सारे सभी तरफ सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, कि सभी तरफ किला बंदी की हुई है, ठीक है, किला बनाया हुआ है, ऑल द सोल्जर्स दे हैड बीन सेटल्ड हियर, ठीक है। तो दिस ऑल द सेटलमेंट्स, जो भी किंग है या किंग के जितने भी आर्मी है, वो सारी इस फोर्टिफाइड सेटलमेंट में है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्टिफाइड सेटलमेंट, तो गैरिसन टाउन, ठीक है। तो गैरिसन टाउन क्या हो गया? ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, जिसमें सोल्जर्स राजा ने अपने अपॉइंट किए हुए हैं। तो अर्लियर जो थे दिल्ली, इट वाज जस्ट ए गैरिसन टाउन। सो इन अर्ली 13th century, 12th century में तो it has the ruler started reigning over Delhi. Then 13th century, the control of Delhi Sultan went rarely beyond the heavily these fortified towns, ठीक है। तो these जो दिल्ली सुल्तान थे, यस, तो ये जो दिल्ली सुल्तान थे, अब ये दिल्ली सुल्तान यहाँ पे, तो दीज आर डिफरेंट सिटीज, यहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज दिख रहे हैं, so these are different cities. So earlier दिल्ली, ठीक है, पहले क्या था? पहले यहाँ पे दिल्ली जो था, दिस इज दिल्ली, और धीरे धीरे these और the names has been written, these are major cities that has been captured by शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने these cities has been captured. So in early 13th century, the control of Delhi rarely went beyond heavily fortified towns. So all these, ये जितने भी थे, ये fortified towns थे, ठीक है, occupied by garrisons. Garrisons मतलब आर्मी, जो सोल्जर्स होते थे वो सभी इन fortified towns में हमेशा ही होते थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गैरिसन्स जो कि सोल्जर्स थी, आर्मी थी, वो हमेशा यहाँ पे होती थी इन टाउन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। अब हिंटरलैंड ये तो हो गए सिटी, ये जो सिर्फ मार्क है, ठीक है, यहाँ पे ये सिटी हो गया, लेकिन जो इसका आउटर एरिया है जहाँ पे कि इसका गैरिसन टाउन नहीं बना हुआ, ठीक है, ये गैरिसन टाउन है, लेकिन ये बाहर वाला जो एरिया है यहाँ पे कोई गैरिसन टाउन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्टिफाइड सेटलमेंट नहीं है। वहां पे जो लैंड है एडजेसेंट टू सिटी, ये सिटी के साथ ही लैंड लग रही है, एडजेसेंट टू सिटी लैंड है, ठीक है, दैट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जहां से कि अब यहाँ ये तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, एग्रीकल्चर तो किले के अंदर पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर तो किले के बाहर ही होगी, ठीक है, और भी जो वेरियस क्राफ्ट पर्सन हो गए या वेरियस अदर पर्सन जो डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं वो भी बाहर रह रहे हैं, ठीक है। सो देवर हिंटरलैंड्स, तो सिटी के जैसे, ठीक है, ये तो सिटी हो गया ना, तो इस सिटी के जो बाहर वाला एरिया है, तो लैंड एडजेसेंट टू दिस एरिया, सो ये जो सारी लैंड है, तो ये सारी लैंड कौन सी लैंड होगी? हिंटरलैंड। तो ये सारा, ये क्या है? ये गैरिसन टाउन। सो दिस इज द गैरिसन टाउन एंड ऑल द एडजेसेंट लैंड that is port or city that supplied with goods and services, so that is hinterland, ठीक है। I think this hinterland and garrison town is clear. Yes बच्चे, hinterland and garrison town, it is clear to everyone.
हिंटरलैंड फोर्टिफाइड सेटलमेंट होगी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की फोर्टिफाइड सेटलमेंट होगी, ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने अजमेर या फिर और सिंध, वहां पे उन्होंने फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बना ली हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो आउटर एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, जो सिटी के साथ साथ वाले एरियाज हैं, वहां पर उन्होंने अपना कंट्रोल अभी एस्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है। सो दिस सुल्तान सेल्डम कंट्रोल, सेल्डम मतलब कि बहुत कम उनका कंट्रोल उस पे हो रहा है, ठीक है। सेल्डम कंट्रोल दीज हिंटरलैंड्स ऑफ द सिटीज, सो वो अपनी जो सप्लाई थी गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए ये हिंटरलैंड के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। अब कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन, अब जैसे यहाँ पे गैरिसन टाउन है जो यहाँ पास में नहीं है, ठीक है। यहाँ बंगाल में गैरिसन टाउन, इधर बंगाल में गैरिसन टाउन हो गया या बनारस में हो गया, तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल, तो यहाँ इतनी दूर दिल्ली से, यहाँ दिल्ली से इतनी दूर तक कंट्रोल कर पाना जो था वो उनके लिए इजी नहीं था, ठीक है। दिल्ली से यहाँ, दिल्ली से यहाँ इधर वेस्ट बंगाल में गैरिसन टाउन, या फिर इधर सिंध में, यहाँ सिंध का इलाका है, यहाँ पे कंट्रोल कर पाना, क्योंकि यहाँ पे अभी देखने में तो बहुत स्मॉल लग रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली से यहाँ पे अगर हमने जाना हो, यहाँ दिल्ली से अगर पंजाब में ही जाना हो तो भी कितना टाइम लग जाता है ना। तो ये जो इजी नहीं था यहाँ दिल्ली के सुल्तान के लिए, दिल्ली के सुल्तान के लिए ये चीजें इजी नहीं थी, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल दीज गैरिसन टाउन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से इतनी दूर दूर तक कंट्रोल कर पाना जो था वो राजा के लिए इजी नहीं था, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल करना राजा के लिए जो था वो इजी नहीं था। तो फिर राजा ने क्या किया, सो अब यहाँ पे एक तो कई बार, अब उस टाइम पर इतने तो ट्रांसपोर्टेशन के हमारे सिस्टम डेवलप नहीं थे, ठीक है। all these transportation system they were also not developed, so it was bad weather, if there was bad weather, if there was communication not good, ठीक है। अगर communication अच्छी नहीं है, bad weather है, तो then this बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है इतनी दूर पर राजा के लिए कंट्रोल कर पाना, ठीक है। सो दिल्ली अथॉरिटी, ऊपर से यहाँ पे हमने कहा था जैसे मोहम्मद गौरी आया था चौहान रूलर के साथ, उसी तरह उसके बाद अफगानिस्तान से यहाँ से मंगोल रूलर्स भी आ रहे थे, ठीक है। यहाँ से मंगोल रूलर्स भी आ रहे थे। अब मंगोल रूलर्स से भी ये हैं मंगोल्स, ठीक है। तो मंगोल्स भी यहाँ पे अटैक कर रहे थे, तो उनसे भी राजा ने उनके साथ भी फिर उनसे भी अपना बचाव करना था, ठीक है। और उसके बाद द सुल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस, जो सारे चैलेंजेस थे वो भी दिल्ली सल्तनत के सामने थे, इतने सारे चैलेंजेस थे। इट्स कंसोलिडेशन, लेकिन फिर भी जो रूलर्स थे दे स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। हाउ दे एक्सपेंडेड देयर रूल, हाउ दे एक्सपेंडेड देयर रूल, हाउ दे एक्सपेंडेड देयर रूल, दे एक्सपेंडेड देयर रूल फ्रॉम दिस दिल्ली, ठीक है। दिस इज दिल्ली, so this is Delhi, from there they expanded, they started expanding their rule. Earlier their rule was just only limited to these cities, and slowly they expanded their rules to these other garrison town. Garrison town, it is clear to everyone? Yes, garrison town is clear, very good. And then the hinterland, what was the hinterland, what was the hinterland? The area adjacent city, जो भी एरिया उसके adjacent था, very good. तो अब now, so these all were the problems. The consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban. अब पहले तो राजा के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मंगोल्स की भी अटैक, राजा हैज टू सर्वाइव फ्रॉम दोज अटैक्स, उन अटैक से भी सर्वाइव करना था, ठीक है। फिर राजा को ये मुल्तान, यहाँ पे सिंध और बे ऑफ बंगाल, इतनी दूर भी अपना जो कंसोलिडेशन था वो भी बनाना था, उनके ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था, तो मैनी चैलेंजेस वर देयर। लेकिन फिर भी ये सारे जो चैलेंजेस थे, ऑल दीज चैलेंजेस दे वर कवर्ड, तो ये सारे चैलेंजेस कवर किसने किए, दीज चैलेंजेस वर मेनली कंसोलिडेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो जो गियासुद्दीन बलबन था, जैसे यहाँ पे गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में, गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में, देन
अलाउद्दीन खलजी, फिर अलाउद्दीन खलजी और फिर मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में ये जो डिफरेंट एक्सपेंशन हुई थी, दिल्ली सल्तनत की जो एक्सपेंशन थी वो इनके टाइम पीरियड में हुई। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो इनके रेन में, इनके रूल में जो ये दिल्ली की एक्सपेंशन थी, इट स्टार्टेड। फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर। अब क्या किया गवर्नमेंट, जो ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, व्हाट दे स्टार्टेड अ फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स। उन्होंने कई तरह के कैंपेन्स मतलब इधर स्टार्टेड कि हाउ दे वुड ऑक्युपाई द अदर लैंड, दूसरी लैंड को वो ऑक्युपाई कैसे करेंगे। ठीक है, ऑक्युपाई कैसे करेंगे, फ्रॉम first set of campaigns along the internal frontier of sultanate aimed at consolidating hinterlands of garrison town। पहले तो जो hinterland है, ठीक है, जो hinterland है उनके ऊपर वो कंट्रोल करना स्टार्ट करे। पहले तो उनके पास कंट्रोल सिर्फ गैरिसन टाउन तक था। ठीक है, नाउ अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि अब हम हिंटरलैंड पर भी अपना कंट्रोल करेंगे। सो हिंटरलैंड पे अपना कंट्रोल करेंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर। तो ये किसमें आ गया, उसके इंटरनल फ्रंटियर में। क्लियर, इंटरनल फ्रंटियर में उसने क्या किया, हिंटरलैंड्स के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ गैरिसन टाउन। जो गैरिसन टाउन्स के आसपास के हिंटरलैंड्स थे उस पे उसने अपना कंट्रोल जो था एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। एंड ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब। तो इसमें हिंटरलैंड में क्या था, हिंटरलैंड में फॉरेस्ट, अब सिटी के आसपास का एरिया तो वहां पे फॉरेस्ट भी होंगे, तो उन फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। उन फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर के लिए स्पेस बनाई गई। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वहां पे स्पेस बनाएगी, जो गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना जहाँ पे रिवर्स हैं उनके आसपास के एरियाज पे जो हंटर गैदरर्स वहां पर थे, जो पेस्ट्रोलिस्ट ऑलरेडी वहां पर थे, उनको उनकी जमीन से निकाल दिया गया। ठीक है, तो वहां से उनको निकाल दिया गया और फिर वहां पे उन्होंने अपनी जो पीजेंट्स एग्रीकल्चर वो करनी स्टार्ट की। यस, सो गैरिसन टाउन क्या हो गया, फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पूरा किला बनाया हुआ है हमने, ठीक है, पूरा किला हमने बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे पूरा सभी तरफ पूरी दीवार बनाई हुई है। ठीक है, तो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट होगी, ये गैरिसन टाउन हो गया। और जो इसके बाहर वाला एरिया है वो क्या हो गया, हिंटरलैंड। ठीक है, ये गैरिसन टाउन हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा हिंटरलैंड हो गया। ठीक है, गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड। तो अब उसने पहले तो दूर के गैरिसन टाउन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, तो उसने ही स्टार्ट कंसोलिडेटिंग हिंटरलैंड। कंसोलिडेटिंग मींस एडजेसेंट होता है, जो बिल्कुल साथ में हो। अब जिस गैरिसन टाउन के एडजेसेंट सिटीज हैं, एडजेसेंट वहां पे हिंटरलैंड, उनको पहले उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, वहां पे ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब। जो गंगा यमुना दोआब के फॉरेस्ट थे उनको साफ किया गया, वहां पे एग्रीकल्चर की गई। और जो उन फॉरेस्ट में हंटर गैदरर्स थे, ठीक है, और उनको बाहर निकाल दिया गया। यस, जो दिल्ली सुल्तान थे, दे वर लिविंग इन गैरिसन टाउन्स, वो गैरिसन टाउन्स में ही रह रहे थे। ठीक है, इन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। और दीज लैंड्स, और जो लैंड वहां पे पेस्ट्रोलिस्ट थे उनको हटा दिया गया, पेस्ट्रोलिस्ट्स को। ठीक है, हंटर गैदरर्स को हटा दिया गया और वो लैंड किसको दे दी गई, पीजेंट्स को। अब पीजेंट्स जो थे, जो उस पर वो दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर वाज बीइंग एनकरेज, नए नए किले बनाए गए। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी गैरिसन टाउन डेवलप किए गए। ठीक है, अपना गैरिसन टाउन बढ़ाया गया। ठीक है, पहले जो हिंटरलैंड थी उसके ऊपर भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो और फोर्ट्रेसेस थे, और फोर्ट्रेसेस बनाए गए, और गैरिसन टाउन्स बनाए गए, ताकि वो जो अपना ट्रेड है उसको और ज्यादा प्रमोट कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। So all these points are clear, whatever we have discussed till now.
about the tariqs, about their advice that given to the king about just rule, then about the ideal social order, okay, and then from the expansion, what is the difference between garrison town and hinterland, and how they started expanding from garrison town to hinterland, to expanding their empire. Clear? So in this point we have discussed कि now they focused on expanding hinterland. The first set of campaigns, जो पहला उनका campaign क्या था, focus क्या था, to along the internal, तो इसको हम कहते हैं कि internal frontier. पहले तो उन्होंने internal focus किया और सल्तनत aimed at consolidating hinterlands of garrison town. During these campaigns, forests were cleared in Ganga Valley. गंगा वैली में जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करके, एंड हंटर गैदरर पेस्टोलिस्ट दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, जो वहां पे ऑलरेडी रहते थे. देयर लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स, एग्रीकल्चर वाज बीइंग देन डेवलप, उसको और ज्यादा उन्होंने एनकरेज किया. क्लियर? एंड देन मोर फोर्ट्रेसेस, मोर गैरिसन टाउन दे वर बीइंग डेवलप्ड. ठीक है, they were being established, so now they were having more control over the trade activities and regional trade. So if there is any doubts, so please let me know. Please let me know in the chat box if there is any doubt. Okay, then thank you students. Revise all the points that we have discussed today. Okay, and we will continue this topic from garrison town to empire. Okay, thank you students. Take care, beta.